right? So okay, so first of all, we have to recall these formulas. V is equals to f lambda and f is equals to 1 upon capital T. Capital T is the time period, and time period means the time of one wave. ठीक है, तो टाइम ऑफ वन वेव आ जाएगा यहाँ तक। तो ये हम लोग जो है ये क्वेश्चन अभी कर रहे होंगे। अच्छा, अभी ये हमने बात की कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, वन वेव होगा, राइट? क्लियर? All right. So now we are going to solve these questions, okay, from the from your reference book, okay? ठीक है, so is this visible? ठीक है, all right. Now the speed of the wave is 4 centimeter per second, ठीक है? तो हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है बेटा? 4 centimeter per second, right? And its frequency is 2 hertz, okay? Calculate its wavelength. अब आपको wavelength निकालनी है. So what you have to do is you have to recall the formula V is equals to F lambda. Clear? V is equals to F lambda and make lambda subject. ठीक है? So you will divide the speed of the wave by the frequency. Is this clear? So plug the values for divided by the frequency. ठीक है? अब frequency कितनी है बेटा? Frequency आपके पास 2 hertz है. So your answer would be 2 centimeter. ठीक है? Now here's another question. We are doing this one. Wave traveling at 5 centimeter per second. ठीक है? Question number 1. A wave traveling at 5 centimeter per second
ठीक है, so the speed is given to us, that is 5 centimeter per second, and a frequency, what is the frequency beta? Frequency is 50 hertz. Calculate its wavelength. Now we have to find out wavelength. ठीक है, again we have to make a subject lambda, so we can directly use v upon f. So the v is here, this time v is 5 centimeter per second and frequency is 50 hertz. So your answer would be 1 upon 10, that is 0.1 centimeter. ठीक है जी. What about the question number 2? A wave has a speed 10 meter per second. Now wave has a speed 10 meter per second. Okay. And the wavelength is 1 meter. Calculate its frequency. So these questions are very much easy. I mean, you just need to directly apply the formulas. Okay. और एक ही फॉर्मूला है और ज़्यादा से ज़्यादा एक और दूसरा फॉर्मूला हम जो यूज़ कर, that will be f is equals to 1 upon t, capital T, and capital T is the time period. And hertz is the SI unit of frequency, right? Now question number 3 says that a wave traveling at 10 meter per second. ठीक है, wave, a wave traveling at 10 meter per second, that means the speed is given 10 meter per second, has a wavelength is 25 centimeter. Now what is the difference in this question? What extra work you have to do? जी बेटा, do you find any difference in question number 2 and question number 3 other than the values? जो आपके मैग्नीट्यूड्स हैं उसको छोड़ के, is there any difference? सर क्वेश्चन 2 में वेवलेंथ मीटर में है और इसमें सेंटीमीटर में. Yeah, that's great. Good. So you have to make the centimeter and the unit of the speed same. Like what is the unit that is used in the speed? Meter or centimeter? Meter, right? So you have to change the centimeter into meter. Okay. ठीक है. So centimeter to meter you will be dividing by 100, right? So you will get 0.25 meter. Okay. And then you directly apply the formula V upon lambda. Okay. What is V? 10 meter per second and lambda is 0.25, right? Now tell me the answer. ठीक है, so this is 40 hertz. Now the next question will be from test yourself. Okay. अब हम इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं test yourself को. Okay. The lines in figure 3.1.6 are crest of a straight ripples. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फिगर के अंदर हमारा यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, तो इसमें देखें आप जो आपको क्रेस्ट दिए हुए हैं, राइट? सो दैट मीन्स F to E and then E, D and then C. These all are the crust. ठीक है, तो ये क्रस्ट के जो है वो क्या हैं? लाइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको ऐसे बना के दूं कि ये वेव्स थी, ठीक है, और ये इसी तरह एक और वेव. नाउ दे आर इन फेज, दे आर इन फेज.
in they are in phase means that every point, if we join one point of one wave to the point of another wave, so there will be a straight line, there will be a straight line, right? तो आप गौर से देखें कि ये जो आपके होते हैं ना, ये वेव फ्रंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जो स्ट्रेट लाइंस आ रही होंगी, ये वेव फ्रंट्स होंगी, ये आपकी वेव फ्रंट्स होंगी। Now in this question, what is the wavelength of the ripples? Part A is saying what is the wavelength of the ripples. So मैंने अभी आपको बताया जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, सही है। सो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ होता है। ना यू नीड टू टेल मी कि आपके पास कितनी लाइंस हैं, यहाँ पे कितनी वेव्स हैं, एक, ठीक है, दो, तीन, चार और पांच, पांच वेव्स जा रही हैं। नाउ कैन यू सी एंड कैन यू ऑब्जर्व कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है बेटा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द क्रस्ट, राइट? सो द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट, इट इज द वेवलेंथ, राइट? ठीक है, ओके। तो एक वेव आपकी यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी वेव ये है, तीसरी वेव ये है, चौथी और पांचवी। तो कितनी वेव्स आ रही हैं बेटा? उजामा आप बता देंगे मुझे बेटा, कितनी वेव्स हैं बेटा ये? सर 5 वेव आ रही है। 5 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स जा रही हैं बेटा? ठीक है, सर 1 2 3 4 5। 5 वेव्स हैं। इसका मतलब एक वेव की लेंथ कितनी हुई? वन वेव, सर एक वेव की लेंथ तो आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। यस, वन वेव इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि लेमडा, लेमडा जो है वो कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। इज इज क्लियर? लेमडा कितना हुआ बेटा? यस, वन 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हमने पहले क्वेश्चन में उसने यही हमसे पूछा था कि वेवलेंथ बता दो, तो हाँ, वेवलेंथ कितनी हुई बेटा? 1 सेंटीमीटर। इज इज क्लियर टू एवरीवन? यस। जी बेटा, आप लोग यस। बता दो। ऑल राइट, यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द पार्ट बी? पार्ट बी में कह रहे हैं if 5 seconds ago ripple A occupied the position now occupied by F, ठीक है, जो A की पोजीशन है 5 सेकंड के बाद F वाले ने वो ले लिए। तो मुझे बताएं 5 सेकंड लगे हैं, 5 सेकंड लगे हैं कितनी वेव्स को F से A तक आने में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर 5। ठीक है, तो 5 सेकंड लगे ना। हम्म। They are saying 5 seconds ago, ripple A occupied the position, ठीक है, now occupied by F, ठीक है, occupied by, ठीक है, occupied एफ। position now occupied by F, यानी कि A वाले की पोजीशन जो है वो उसकी जगह कौन आ गया? F आ गया। ओके, तो मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव्स आई हैं? एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, ठीक है। 5 ही। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। एक वेव ये कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी वेव ये कंप्लीट हो गई, सर राइट? 5 वेव लगेंगी। ठीक है, यस। तो एक वेव ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, राइट? सो 1 2, फिर 3 4
5 and 6, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। अब आप मुझे बताएं एफ वाला, एफ जो पॉइंट है, एक पोजीशन एफ है, एफ को ए तक जाने में कितना टाइम लगा है? सर 5 सेकंड। 5 सेकंड लगे, राइट? ठीक है, तो एक वेव का टाइम कितना हुआ बेटा? सर 1 सेकंड। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, राइट? तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने किसमें? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में। तो मुझे बताएं स्पीड कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर इन, सर वो आपकी 1 होगी। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया बेटा? हर्ट्ज। हमारे पास क्या आ गया बेटा? 1। स्पीड आ गई। ठीक है बेटा, दिस इज द स्पीड। सिंस इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक वेव है, तो पीरियोडिक वेव में क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो रही होती है, राइट? तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और हमें पहले पार्ट में हम पहली वेव लेंथ निकाल चुके हैं, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो नाउ विच फॉर्मूला वी कैन यूज? जी बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है। हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो यस मेक एफ अ सब्जेक्ट, सो v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, और लैम्डा सर 1। 1। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हुई बेटा आपकी? 1। 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो हम वैसे भी बता सकते थे, 1 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रही है, डेट्स वाई इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई? 1। ठीक है, जब हमें यहाँ से पता चल रहा था कि हम 1 सेकंड में, ठीक है, एक वेव ही कंप्लीट हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी इसकी 1 हर्ट्ज ही होगी, डायरेक्ट भी बता सकते थे। सही है, क्लियर? फ्रिक्वेंसी यस क्या सर। था बेटा? कैन एनीवन रिकॉल मी के व्हाट इज फ्रिक्वेंसी? सर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यस, सेकंड। गुड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट, राइट? एट पर सेकंड। इन 1 सेकंड, क्लियर? हम्म। यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं? तो बेटा खुजामा भी आप खामोश रहेगा। बेटा आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं? एक। एक वेव 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, बात समझ आई? क्लियर है? गॉट इट? 1 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रही है, 1 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज 1। ओके, नाउ दे आर आस्किंग इन पार्ट सी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिपल्स। तो अगर हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये रही, हमारे पास वेवलेंथ ये रही, तो हम पार्ट सी अभी कर चुके हैं, राइट? जैसे किया बेटा सी का पार्ट, स्पीड इज व्हाट? लैम्डा अपॉन v is equals to f lambda. I'm so sorry for that. Wait, sorry. E is equal to F lambda. Yeah, v is equals to f lambda. So what is frequency? And lambda is 1. So वन it, हर्ट्ज। yes, तो ये इस तरीके से आपका वैसे हो जाएगा सवाल, वरना पहले आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालेंगे पहले। ओके, पार्ट बी में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? 1 सेकंड में एक वेव जा रही है, 1 सेकंड में एक वेव जा रही है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई बेटा? 1 हर्ट्ज। ओके, इज दिस क्लियर नाउ?
ओके नाउ लेट्स डू दिस वन। बेटा इस क्वेश्चन को देखें जरा, दिस वन। जी, कौन बताएगा ये कैसे होगा? इसका सिर्फ सिर्फ आपने पार्ट ए बताना है मुझे। पार्ट बी जो है ना, अभी हम लोग उस वक्त करेंगे जब आप लोगों को मैं डीप और शैलो का रिफ्रैक्शन बताऊंगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जब हम करेंगे। ओके जी बेटा, पार्ट ए जल्दी से बता दें बेटा, फिर हम क्लास खत्म करें। भाइयों बता दो यार, कह रहा है एक टफ होगा। बार। पहले वो सर पढ़ने दो मुझे। जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, 3.1.14 जो है इस फिगर में आपको वेव्स दी हुई हैं। मेक श्योर कि आपकी जो बेस लाइन है वो फिर यहाँ पर होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि ये इक्वली यहाँ से डिवाइड हो रही है, ऊपर भी और नीचे भी। तो बेस लाइन आपकी कहाँ पर आ रही है? 4 पर आ रही है। तो ख्याल कीजिएगा अब एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड क्या था? वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना है भाई? कितने यूनिट्स है? हाँ भाई। सर 8। अबे यही तो गलती कर रहे हो। कितने हैं? सर 4 4 4। 4 है भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी। यहाँ से यहाँ तक 4 ये है और ये 8 है, तो कितना हुआ बेटा? सर 20 द आंसर। तो हाँ, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ बेटा? 4 और वेवलेंथ भी 4 है। और वेव लेंथ अगर हम देखें तो हाफ वेव हमारी कंप्लीट हो रही है कितने सेकंड, कितने उसमें यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस है ठीक है अगर। तो बेटा ये आपका कितना हुआ? 4 बॉक्सेस। ठीक है, और ये कितना हुआ? 4 बॉक्सेस। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो वेव लेंथ कितनी हुई बेटा आपकी? 8 हो गई। अब बताएं एम्पलीट्यूड 4 और 8 कहाँ पे आ रहा है बेटा? विच वन इज करेक्ट बेटा? विच वन इज करेक्ट? ए बी सी डी? बी। बी करेक्ट है? सी सी। सी करेक्ट है। समझ आ गई? एम्पलीट्यूड किसमें? 4 आ रहा है। ठीक है, 4 एम्पलीट्यूड है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है? 8 है। हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों लिया? मैं फिर तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो। ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 से और 8। तो 8 माइनस 4 कितना हुआ बेटा? 4। एम्पलीट्यूड आपका आ गया। अब बताओ, ये वेव हमने यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये पूरी आधी वेव हो गई यहाँ तक, और फिर ये कंप्लीट वेव एक हो गई यहाँ तक। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 2, 4, 6 और 8। समझ आ गई? क्लियर है? ऑलराइट। तो आप लोगों ने इसके क्वेश्चन जो है ना वो करने। ठीक है, पास पेपर के इंशाल्लाह आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू। ओके, वो है ना आप लोग अभी जो टेस्ट है वो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ओके सर। ठीक है जी। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है भाई? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।